Assalamu alaikum and welcome back to Nova Research Internship 2024. Today we have a session on survey-based research, and our instructor has joined us. Ms. Sabah Razak is with us. So I would like to introduce Ms. Sabah. She is a faculty member and lecturer at Salim Habib University, Karachi. She is a PhD candidate in pharmaceutical chemistry. She specializes in analytical method development, drug interaction studies, and nanoparticle-based detection techniques. With several published work on pharmaceuticals, Ms. Sabah also brings 2 years of professional experience from Indus Hospital, Karachi. So a very warm welcome to Ms. Sabah to this research internship. So the floor is open for you, ma'am. Okay. Assalamualaikum. Walaikum salam. Yes, Thank you, ma'am. Atik, for the introduction. So, am I audible? Yes, you are. Thank you. Okay. So, this is me, Sabah Razak. Atik has introduced me. So, this is my first class with you. So, let me introduce myself. This is me, Sabah Razak. I am from Faculty of Pharmacy. Basically, I am a PharmD graduate and I have done my MPhil in pharmaceutical chemistry. And now I am currently enrolled in PhD. So, today, our topic of this program is survey-based research design. So I would like to share the screen with you all. Ati, can I share the screen? Yes, ma'am, you can. Okay, thank you. So today's topic is survey-based research. You have already studied about different methodologies of the research. You have already discussed how to write a research article, how to write a review article. Now this is a very common topic, that is survey-based research. You all must be familiar with what is survey. So let's start with the topic. Let me tell you, this topic is divided into the two sessions. Today I will give some introduction of the survey-based research, and then I will tell the types, and then how to do and what are the potential ethical guidelines, what should be considered when you are making a survey, when you are doing survey-based research. So tomorrow we will discuss about how to make a questionnaire, how to make on the Google form, and how we will make a questionnaire, how can we validate the questionnaire, and then how we can study. Okay, so uh, by the end of this lecture, you should be able to understand what is survey search, how, when to use it. The main target is when to use it, when to use. What are the types of the survey design? Type of surveys we can conduct? What are the key characteristics of the survey research? How to construct an email, a questionnaire, how to design interview survey. बेसिकली हम लोग के माइंड में क्या होता है कि सर्वे सिर्फ जो है ना एक क्वेश्चनर है, गूगल फॉर्म है जो हम सर्कुलेट कर देते हैं और हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ द सर्वे. And now the most common type is Google form that can be easily done, but there is another type is interview based survey. And what are the potential ethical guidelines, when ethical considerations you should keep in your mind when you are doing the survey research? Okay, so let's start with the definition. If you see what is survey, basically if we see a definition, अगर हम definition point of view से देखें तो survey simply it is to ask a question or series of questions from the many people, so multiple people, asking a question from multiple people at the same time, that what they think about something. Or we can say it can be anything from a short paper and pencil feedback
to an intensive one-on-one in-depth interview. It can be both. It can be simple pencil, paper and pencil via एटीट्यूड्स के व्हाट दे वांट, उनका ओपिनियन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, मार्केट में किस चीज का गैप है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर क्या है। और ये सर्वे बेस्ड स्टडी है, रिसर्च स्टडी, इट कैन बी यूज टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल फील्ड में वी कैन से सर्वे रिसर्च इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, देयर आर मल्टीपल डिसिप्लिन्स कैन यूज they can use these type of form like health, in healthcare, social sciences, education, marketing, political sciences. Even in politics, survey is most widely used tool for the research. And basically in pharmacy, I am a pharmacist, so I'll tell you, in pharmacy we basically use to assess patient satisfaction, healthcare outcomes regarding a particular disease, medication adherence, either patient is adhere to his or her medication or not, and what's public opinion about the hospital or about the drug, or comparative study about the drug. There are number of drugs, like for example, we can compare multiple drugs at the same time, ओपिनियन ले सकते हैं। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो सर्वे इज सिंपली अ ओपिनियन बेस्ड स्टडी। वी वांट टू गेन डेटा और इंफॉर्मेशन of the particular population। अगर हम पूरी population का opinion ले सकते, for example you can't take a data from whole पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के एक particular population लेते हैं, उसमें से उनमें से sample लेते हैं, उस पर आप data करते हैं और फिर आप consider करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपने अगर आई बिलीव कि आप लोग डिफरेंट, आप लोगों ने रिसर्चेस कंडक्ट की होंगी या नहीं भी की होंगी, अगर आपको आइडिया नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेपर रीड किया होगा तो लिखा हुआ होता है फॉर कंपैरेटिव स्टडी इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में तो नहीं होगी ना, पाकिस्तान की कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन पे वो स्टडी नहीं होगी, बट क्या करते हैं वो स्टडी रिप्रेजेंट करती है पूरी पॉपुलेशन को। We can say we have gained a large number of data from a particular population, that population represent a particular country or particular area। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रह के काम कर रही हूँ, पर्टिकुलर कराची के एक छोटे से हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, बट आई एम सेइंग कि इन पाकिस्तान दैट दिस डेटा बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान के पर्टिकुलर टेरिटरी को ही का एरिया इसको इंडिकेट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हेन टू यूज अ सर्वे टू असेस ट्रेंड्स, why you are using this, why you are when you have to you can use survey basically when you need opinion, this beliefs, attitudes of the individuals. You want to know you want to gain data from the individuals to follow to particular follow up of a particular analysis, to follow to take a follow up particular फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीनरी आपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दी है, उसका अगर आपने ओपिनियन लेना है, उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने देखने हैं, या वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल की पॉपुलेशन, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो उसको यूज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, तो उसके हम उन डॉक्टर्स और नर्सेज से भी वो डेटा ले सकते हैं कि आप कि ये कितना हेल्पफुल है फॉर द मिटिगेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज या फॉर योर इजीनेस इन द वर्क। तो ये पर्टिकुलर फॉलोअप के लिए भी हो सकता है, और पर्टिकुलर प्रोग्राम इवेल्युएशन के लिए अगर आपको कोई प्रोग्राम इवेल्युएट कराना है, फॉर एग्जांपल आई एम ए फॉर्म डी ग्रेजुएट, अगर फॉर्म डी की मुझे फॉर्म डी करिकुलम को जो है ना, मैंने उसका प्रोग्राम इवेल्युएट करना है, फीडबैक लेना है फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, तो सर्वे इज द बेस्ट way to do. Type of data? I have already told you that we can mostly assess quantitative data, and qualitative data can also be accessible. Okay, sampling. The most important target for a particular researcher is to do sampling. What is sampling? Sampling is basically when the population is so large that researchers must सैंपल ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। आप इतने बड़े पॉपुलेशन से एक सिर्फ सैंपल उठाएंगे, उसका जो आपने जो रिजल्ट है वो कंक्लूड करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। वही बात है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च इन द कराची,
in a particular university or in a hospital or any organization you are इन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डेटा कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करिए। अगर आप स्टूडेंट से डेटा कर रहे हो तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एक सैंपल लेना भी आपकी सर्च सर्वे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग ए सर्वे, मुझे जो है ना सर्वे करना था हाउस वाइफ से और मैं उसको कर रही हूँ। हाउस वाइफ का डेटा लेना था कि हाउस वाइफ क्या व्हाट दे थिंक, या उनका पर्टिकुलर जो हाउस होल्ड है उनका पर्टिकुलर हाउस होल्ड से रिलेटेड मुझे उनसे उनका ओपिनियन जानना है। मैं हाउस वाइफ को टारगेट कर रही हूँ। अब और टारगेट आपने सैम्पलिंग क्या की, आपने टारगेट ऑडियंस रख दी जो जॉब वुमेन्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब वुमेन्स हाउसवाइफ नहीं होती हैं, बट जो पर्टिकुलर हाउसवाइफ सारा दिन हाउसवाइफ मतलब घर में होती हैं और पर्टिकुलर जो भी आप हाउस होल्ड का डेटा ले रहे हो वो सारा दिन वो यूज करती हैं। तो आप किसी मेंस को या फिर आप ऐसी ऑडियंस को दे रहे हो, मतलब ऑडियंस प्रॉपर टारगेट नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। और पॉसिबल सोर्सेज भी हैं बायसनेस की, लाइक फॉर एग्जांपल डिमांड कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर यू नीड you need a particular characteristic on the that target audience, उनमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर होना चाहिए, अदरवाइज आप एक्सक्लूड करते जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर फॉर एग्जांपल हैप एंड वैप है, निमोनिया है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया है, वेप यू आर अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है और वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया है, यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टारगेट। तो आपने क्या करना है कि आपने मतलब आपने उसी हॉस्पिटल में उन्हीं पेशेंट्स को टारगेट करना है कि जो कि हॉस्पिटल में, और जो पेशेंट घर जा चुके हैं आपने उन पे तो वो टारगेट नहीं कर सकते ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे सारे, मैं हॉस्पिटल में देर आर 1000 पेशेंट्स, बट मुझे उसमें वो पेशेंट्स ही नहीं मिल रहे जिनको है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो मेरा टारगेट वैसे ही स्विच हो जाएगा। मतलब बहुत मुझे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मतलब 900 पेशेंट्स ऑलमोस्ट मुझे उसमें स्किप करने पड़ेंगे। सिर्फ ऑलमोस्ट मेरा जो मुझे टारगेट ऑडियंस सैंपल बहुत मेरा शॉर्ट हो सकता है इस बेसिस में कि सबको, अगर आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है तो सबको तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया नहीं हो सकता ना। तो फिर मुझे वही पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक वाला पेशेंट चाहिए जिससे मुझे टारगेट करना है। रिस्पॉन्सिव बायस, कभी कभी हमारा मूड नहीं होता, हम बस ऐसे ही गूगल, मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास कोई गूगल फॉर्म आता है, अगर मैं बहुत मुझे वो टॉपिक अट्रैक्ट करता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से फिल कर देती हूँ। अगर टॉपिक नहीं अट्रैक्ट करता तो यहाँ बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं या प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ और मुझे एग्रीकल्चर या रोबोटिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है गूगल फॉर्म पे, तो मैं उसको कैसे जो है ना रिस्पॉन्ड करूंगी। अगर मैं रिस्पॉन्ड कर भी रही हूँ तो मैं उसमें कितनी बायस्ड हो सकती हूँ, बिकॉज मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता आपके रिसर्च के लिए। इट इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। आपको इसमें लैब बेस्ड कोई भी काम नहीं करना पड़ता। सर्वे कैन बी यूजफुल व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू कलेक्ट डेटा that cannot be directly observed. The major issue I have already told you is the sampling issues. सबसे पहला sampling issue है। Number two issue is questionnaire design. How to design a questionnaire. It is very important. In the next class, we will discuss how we can design a questionnaire, how to develop a questionnaire, how to validate it, and how to circulate it. How to interpret the data when we are taking types of surveys. This is the most important. Surveys can be classified in various ways depending upon the design purpose, methods of the design, purpose, and method of administration. If we see the time dimension, basically it is time based. It is divided further into the two sections, that is cross-sectional surveys and the longitudinal surveys. And if we see the another type is the purpose based study, that is कि हम चाहते क्या हैं, what we want, हमारा डेटा किस टाइप का होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, इट मीन्स कि आप कौन सा टाइप का सर्वे करना चाह रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, टेलीफोनिक है, फेस टू फेस इंटरव्यू है आपका, ये पेपर बेस्ड सर्वे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। If we see the on the basis of time, there are two types we have already discussed, that is cross sectional surveys and the longitudinal surveys. Cross sectional survey is a very interesting. It is basically, if we see in simple words, it is a picture based, it is a one time picture. एक बार का डेटा आपको मिल गया, आप उसको दोबारा, बस आपने वन टाइम डेटा जो लेते हैं ना उसको हम सिंपली कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। लाइक इट प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सिर्फ एक बार लेना है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे वो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एट ए क्लिनिक टू असेस देयर सेटिस्फेक्शन विद सर्विसेज ऑन अ पर्टिकुलर डे। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर डे पे पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को असेस करना इस सर्विंग
is a cross sectional survey. It is very quick and cost effective. Cannot capture changes over time. ये डिसएडवांटेज है इसका, ये अगर आपको डिफरेंट टाइम बेस्ड टाइम टू टाइम उसका डेटा लेना है तो आप क्रॉस सेक्शनल की तरफ नहीं जाओगे, तो आप लॉन्गिट्यूडनल की तरफ जाना होगा आपको. देयर इज अनदर टाइप दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. फॉर द क्रॉस सेक्शनल, here you can see a picture that there are different groups but you are targeting all the groups at the same time. अगर हम एज की बेसिस पे भी डिवाइड कर देते हैं, टाइप्स की बेसिस पे भी डिवाइड कर देते हैं, बट all the data can be accessed at only one time. ग्रुप वन में अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटे बच्चे हैं 22, सॉरी छोटे बच्चे कह रही हूँ, मतलब एज 22 35 की रेंज में है. ग्रुप टू मेरे पास 36 to 50 की रेंज में है, और ग्रुप थ्री 51 to 65 की रेंज में है. So all data can be accessed at a one time is a cross sectional survey. Am I clear? Cross sectional study में simply we can say it is a one time picture in simple words. Another type is longitudinal. Longitudinal basically is a collect the data from same subjects over a period of time. हमारे पास सब्जेक्ट सेम है बट टाइम टू टाइम हम जो है डेटा ले रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल time to time, for example if you want to assess a memory of particular target, एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ और चिल्ड्रंस हैं, वी कैन से बच्चे हैं, एक ही दिन पे पैदा हुए हैं सारे, बॉर्न टाइम उन दिन का सेम है, उस पूरे ग्रुप को मैंने टारगेट कर लिया और मैं असेस कर रही हूँ उनकी मेमोरी, टाइम टू टाइम मेमोरी. तो लॉन्गिट्यूडनल वी कैन से टाइम टू टाइम स्टडी या स्टडी ओवर टाइम फॉर पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस. पॉपुलेशन सेम रहेगी, सैंपल चेंज कर सकते हैं हम लोग. लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेंड सर्विस तो मोस्टली पर्टिकुलर एज की, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द सेम किड, आई हैव टेकिंग द सर्वे ऑन द एज 4, एज 7 एंड एज 11. उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन की, उस पर्टिकुलर किड की मैं डिफरेंट टाइम्स पे जो है उसकी इवेल्यूएशन कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ कि मेमोरी ग्रोथ क्या है. तो दिस इज द ट्रेंड सर्वे. Another type is the longitudinal survey is basically divided into three types: trend, panel, and cohort on the basis of their बिल्कुल स्लाइड डिफरेंट है, डिफरेंस है तीनों टाइप्स में, तीनों सर्विस में, बट ऑल थ्री फॉल्स इन द लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने ये याद करना है कि इट कलेक्ट डेटा ओवर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में ये डेटा कलेक्ट करता है. उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट जो है ट्रेंड सर्विस है, पैनल सर्विस है, कोहॉर्ट है. तो पैनल में हम सिंपली वी कैन से फॉलो द सेम पार्टिसिपेंट्स ओवर टाइम टू स्टडी. सेम पार्टिसिपेंट्स हैं, आई कांट चेंज पार्टिसिपेंट्स. अगर मैंने एक पॉपुलेशन है उसमें से जो सैंपल लिया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स ही रहेंगे पैनल सर्वे में. उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को मैं डिफरेंट इंडिविजुअल बिहेवियर और ओपिनियंस को जज करूंगी. कोहॉर्ट सर्वेज हैं. कोहॉर्ट सर्वेज में हम like for example people born in the same year, over time you are following up the particular common characteristic. एक particular common characteristic को टाइम डिफरेंट टाइम पे आप बार बार उसको इवेल्यूएट कर रहे हो. आपकी पॉपुलेशन सेम लगी लेकिन सैंपल चेंज कर सकते हैं आप. ये इसमें आपको जो ये वाले लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है ना, बेसिकली आपको ट्रेंड और कैजुअलिटी एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ डेटा ऑफ द फॉर द हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है पूरे साल में, तो मुझे सब पूरे साल का डेटा चाहिए होगा. मतलब एक दिन का डेटा नहीं है, पूरे साल का एनुअल डेटा चाहिए. तो मुझे टाइम टू टाइम में डेटा ले रही हूँ, हाइपरटेंशन की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है, एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक मैंने ले लिया और पूरे साल में मैंने उसको देखा कि कितने लोग उस एज के इस साल में उनकी डेथ हो रही है. तो दिस विल बी द कोहॉर्ट सर्वे. ठीक है, तो ये हमें कैजुअलिटीज और ट्रेंड्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. और मोस्ट कॉमनली लॉन्गिट्यूडनल सर्वे भी हमारी रिसर्चेज में हम यूज कर रहे होते हैं. अगर हम कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च करें, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग योर पीएचडी थीसिस या कोई लंबा काम है, लेंथी काम है, आपका टारगेट ऐसा है कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए, तो आप उसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्विस को फॉलो करेंगे. बट ऑब्वियसली लेंदी है तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है. आप एक ही पॉपुलेशन को बार बार आप असेस कर रहे हैं, आपकी सैम्पलिंग है, आपने इसमें जो है ना बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना होता है. ट्रेंड्स में हमारे पास जो है एज आई टोल्ड यू, फोकस ऑन द सेम पॉपुलेशन ऑफ द पीपल. वही पॉपुलेशन है, इसमें
मोस्ट कॉमनली वी आर मेकिंग ओपिनियन पोल्स कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका सर्वे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ ग्रेजुएट्स प्रेफरिंग मोबाइल लर्निंग, कि ग्रेजुएट्स जो है मोबाइल लर्निंग को कैसे प्रेफर करते हैं। तो इफ आई अगर हम रिजल्ट की तरफ जाएं तो 46% of the peoples feel that it is important to be able to study on mobile, कि हमें मोबाइल, और 60% तो मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। 22% जो है मोबाइल को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम द सर्वे ऑफ ग्रेजुएट्स, दीज आर ओपिनियंस ऑफ ग्रेजुएट्स। इस स्टडी को हम ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। नंबर टू इज द what is that number 2 is the cohort study। cohort study में जो मेन हमारे पास पार्ट है ना, it is determine the effectiveness of the new core। it is basically you can use Am I audible to you? Students, can you listen me? Okay, I think Miss Sabha has issue. Mm, Okay, let me contact her. She has some internet issue. That's why. sorry there is an internet problem, instability। am I audible at Yes, least? yes, ma'am. Yes, ma'am, you are. No issue. is studied repeatedly a specific population, एक particular population बार बार repeat करें। like for example I am giving example of a hospital patient। एक particular हमारे पास target है हाइपरटेंशन। एक पर्टिकुलर मेडिकेशन का मैं ट्रीटमेंट चेक करी हूँ, तो मेरा जो टारगेट है करेक्टरिस्टिक है दैट इज हाइपरटेंसिव मेडिसिन, ठीक है। और मैं उसी ट्रीटमेंट को ओवर टाइम जो है वो मॉनिटर कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ। दिस इज अ सर्वे बेस्ड स्टडी। मैं इसको हॉस्पिटल में इसमें इस स्टडी में फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट मेकिंग अ क्वेश्चन तो मैं पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर रही हूँ, उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। और मेन टारगेट इज टू गेदर इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आप उसके लिए गूगल फॉर्म यूज कर रहे हो, उसके लिए क्वेश्चन यूज कर रहे हो, इंटरव्यू बेस कर रहे हो, या 1-to-1 डेटा कलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर पेशेंट का। तो दिस इन इस लॉन्गिट्यूडल में आपका वो सैंपल सेम नहीं रहेगा, लेकिन आपकी पॉपुलेशन सेम रहेगी। पॉपुलेशन वही है आपकी, हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होने चाहिए। सैंपल तो सेम नहीं रहेगा ना, पेशेंट अगर ठीक हो गया वो तो अपने घर चला जाएगा ना, आप उसको रख तो नहीं सकते कि मुझे अब भाई आपका डेटा चाहिए। तो आपका अल्टीमेटली वी कैन से सैंपल आपका चेंज हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन वही रहेगी। तो दिस इज द कोहॉर्ट रिसर्च दैट कैन बी यूज्ड ओवर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पूरे साल के लिए भी कर सकते हो, 2 साल के भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन पैनल डिस्कश स्टडीज में द नंबर, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज पैनल स्टडीज और पैनल सर्वे। इस स्टडी में सेम सैंपल यू हैव टू यूटिलाइज द सेम सैंपल एंड द सेम पॉपुलेशन। Okay, the here common thing is same sample from the same population over time। the more complicated, very difficult to carry out, obviously आपको उन particular respondents को जो है ना repeatedly track करना होता है, repeatedly जो है आपको उनको assess करना होता है। तो it required more focus, more specific
particular, like for example you are using a different laboratory library usage trend among students कि आप उन्हीं particular students की बात करें कि वो बार बार लाइब्रेरी के ट्रेंड्स को किस तरह के लाइब्रेरी बुक्स को या लाइब्रेरी को किस पर्पस के लिए यूज करें या कितनी फ्रिक्वेंसी में यूज करें। वही पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल एक ही सैंपल को मैं यूज करी उन्हीं उन्हीं लोगों पे 5 लोग लिए या 10 लिए या 50 लिए जितने भी लिए पर्टिकुलर पॉपुलेशन को मैं टाइम ओवर टाइम उसी पॉपुलेशन का बिहेवियर देख रही हूँ। क्रॉस सेक्शन में पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस से स्टडी एट द सेम टाइम। वही बात होगी कि डिफरेंट स्टडी के आप सेम टाइम पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट ग्रुप्स हैं 12 से 15, 15 से 20, 20 से डिफरेंट एज ग्रुप है जिसमें हमारे पास एडल्ट्स हैं, ओल्ड्स हैं, बच्चे हैं, सारे एक ही साथ स्टडी करें, दैट इज क्रॉस सेक्शन। लेकिन आप एक ही ग्रुप को ओवर टाइम पीरियड के लिए यूज करें तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। तो बस ये डिफरेंट है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में देर आर 3 more parameters, that is panel, trend and cohort. Okay, if we see the type of survey on the basis of purpose, so there are other 2 types, that is descriptive and analytical survey. It is on the basis of purpose. आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस सिर्फ आप पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर या एक पर्टिकुलर ग्रुप का ओपिनियन जानना चाह रहे हो तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव सर्वे। you just only need for example college students में smoking की prevalence क्या है, if you just want to determine this, so this is the descriptive survey. You want a ओपिनियन पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स का ओपिनियन जानना चाह रहे हो। बहुत इजी है इंटरप्रेट करना, डेटा प्रेजेंट करना कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में डेटा प्रेजेंट किया है कॉलेज स्टूडेंट्स ने, कॉलेज में सॉरी, तो 100% में से 40% ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग आर स्मोकर्स। और वो मतलब स्मोकिंग से रिलेटेड, आप स्मोकिंग हैबिट से रिलेटेड पूरा आप उसका सर्वे कर रहे हो। तो ये आपको परसेंटेज बताना बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है ना ट्रेंड्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एनालिटिकल में बेसिकली जो है प्रॉपर रिलेशनशिप देखना पड़ता है प्रॉपरली, जो है ना आपने अगर एक कंपैरिजन, मोस्टली कंपैरेटिव स्टडीज जो है वो इसमें आ जाती हैं। आपने डिफरेंट फॉर एग्जांपल you want to conduct a relationship, you want to examine a relationship between 2 variables like income level क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, you want to relate one thing with the another, तो दिस इज द एनालिटिकल। इसमें आपको प्रॉपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी होगी, प्रॉपर आपने इसमें स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज करने होंगे। तो दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि अगर मैं मतलब कि इनकम का हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि आपकी इनकम का फॉर एग्जांपल इनकम का क्या इफेक्ट है, तो दिस विल बी एनालिटिकल सर्वे। जब आप इसको बाद में जब रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें प्रॉपर आपको उनकी कोरिलेशन देनी पड़ेगी, वन डेटा कोरिलेशन ऑफ द वन डेटा विद अनदर, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एंड लास्ट हमारे पास था टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कौन से टाइप का सर्वे यूज कर रहे हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, सर्वे की टाइप में ये नहीं इसमें आपका सिंपली मेथड आप कह सकते हैं कि आप क्रॉस सेक्शनल मेथड ले रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल मेथड ले रहे हो, डिस्क्रिप्टिव ले रहे हो, एनालिटिकल ले रहे हो। अब लास्ट में आप किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन मेथड क्या, आपका मतलब आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। आप ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हो, आप फेस टू फेस सर्वे कर रहे हो, खुद जा जाके आप देख रहे हो, या आप पेपर बेस्ड सर्वे कर रहे हो। जो मैंने आपको बताया ना पर्टिकुलर, जैसे आप मैनुअल डेटा एंट्री पेपर बेस्ड में, तो मैंने आपको भी बताया कि जैसे हॉस्पिटल में मुझे पर्टिकुलर डिसीज का डेटा चाहिए, 1000 पेशेंट्स हैं लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर पैरामीटर ही चाहिए, मैं उन्हीं पैरामीटर्स के पेशेंट्स को जो है ना, उन्हीं पर्टिकुलर पैरामीटर के पेशेंट्स को का फॉलो करूंगी। मेरी टारगेट ऑडियंस वही है, चाहे वो पेशेंट्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, नए पेशेंट्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन मेरी सेम है, लेकिन मेरा टारगेट ऑडियंस मेरी एक ही है, लेकिन सैंपल चेंज हो रहा है। तो दिस इज अ पेपर बेस्ड सर्वे। आपको जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में अगर आपको डेटा लेना है, आप खुद जाते हो, पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हो, एक तो ये काम हो गया। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर बेस्ड है, जैसे कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में सारा डेटा उनके कंप्यूटर्स पे होता है, आपको उनका कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए होता है, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के एक्सेस चाहिए होता है, उनके कार्ड के जो नंबर्स होते हैं आप उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को। तो दिस इज द पेपर बेस्ड एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टडी, इट कैन टेक 6 months 1 year, डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन है, आपको 100 पेशेंट्स चाहिए होंगे, आपको एटलीस्ट 100 रिस्पॉन्डेंट्स पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अब उस हॉस्पिटल में आप गैप के या हैप के हाइपर हॉस्पिटल डेटा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग।
टाइम टेकिंग प्रोसेस है उन पेशेंट्स को आने में। आपकी 100 जैसे एक आ गया फिर दो आ गया, इस तरह से पॉपुलेशन को आने में टाइम लगता है। तो आपको ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंड्स कि आपका कितना टाइम लग सकता है उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए। सही है। ऑनलाइन सर्वे इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव है, वाइडली रीच्ड है। अगर आप बहुत लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करना चाह रहे हो तो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप गूगल फॉर्म में सर्वे मंकी के थ्रू, आप गूगल फॉर्म सबने सुना होगा, अनदर मेथड टू मेक अ क्वेश्चन विद द सर्वे मंकी। आप ये अनदर प्लेटफॉर्म है सर्वे मंकी या गूगल फॉर्म, इनके थ्रू आप जो है गूगल फॉर्म या क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिकली आपने उन इसमें उन पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दिया। इसका डिसएडवांटेज ये है ऑनलाइन सर्विस में, जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या वो पॉपुलेशन जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर आपके पास 100, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने कभी क्वेश्चन बनाया होगा या ऑनलाइन सर्वे रिसर्च कंडक्ट की होगी सर्वे बेस्ड, तो आपने ये देखा होगा कि अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन 100 है, आपने 100 के ग्रुप्स में वो अपना अपना क्वेश्चन शेयर किया है, तो ओनली कुछ फ्यू पॉपुलेशन जो है उसमें रिस्पॉन्स करेगी। तो दिस इज अ वेरी, इसमें पोटेंशियल है कि लो रिस्पॉन्स रेट्स होते हैं। तो इसका भी हम देखेंगे फ्यूचर नेक्स्ट, कि हम किस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज को, या किस तरह से हम अपने रिस्पॉन्स रेट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर वन ऑफ द मेन कंसर्न इसमें यही होता है कि इसमें जो है ना, जिन लोगों के मोबाइल की एक्सेस नहीं है, जिनको यूज़ करना नहीं आता, या जो इलिटरेट हैं, लेकिन आपको इलिटरेट्स का डेटा चाहिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका डेटा आपको चाहिए, बट आपने क्या किया, गूगल फॉर्म बना दिया। तो क्या आप उनको पर्टिकुलर टारगेट और आप ऑडियंस को प्रॉपर टारगेट कर रहे हो? तो दिस इज अ सैम्पलिंग। आपको ऑडियंस टारगेट करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करोगे। टेलीफोनिक सर्वे अभी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट के थ्रू पार्टिसिपेंट्स जो है, उनको पार्टिसिपेंट को कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है। इसका ये होता है कि आप जो है ना, इसका भी वही बात है कि आप इन हर इंडिविजुअल्स को जो है ना कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसमें इंटरव्यूअर की बायसनेस भी आ जाती है। मतलब इंसान है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन बायसनेस तो होती है। अगर उनको एक पर्टिकुलर उसका आंसर बहुत सही दे रहा है, लेकिन उस पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, या एटीट्यूड है, या कोई भी एनी पैरामीटर जो कि आपको लगता है कि आपकी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, आपकी इंटरव्यूअर को बस अच्छा नहीं लगा, बाय फेस अच्छा नहीं लगा, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं लगा, वेल ड्रेस नहीं था, फोन पे तो आप क्या ही ड्रेसिंग दे सकते हैं, सॉरी, लेकिन आप मतलब आप देख नहीं सकते आप किस तरह से, आप उसको किसी भी तरह से इंटरव्यूअर की बायसनेस इसमें आ सकती है। और सब नंबर वन इसमें जो है वो तो टाइम कंज्यूमिंग है। फेस टू फेस सर्वे में हमारे पास आ जाता है इंटरव्यूअर की बायसनेस में, वेल ड्रेस नहीं है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, एरोगेंट है, जब मैं पूछ रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा, वो सही से आप वो अगर वो कुछ बता रहा है, आंसर तो बहुत अच्छे कर रहा है, बट आपके इंटरव्यूअर को वो समझ में नहीं आ रहा, उसने लिख के गया हुआ है कि मुझे यही आंसर चाहिए, और अगर वो आंसर उससे रिलेट करते हैं बट सेम नहीं है, तो इंटरव्यूअर की बायसनेस आ सकती है। इसमें भी आप इन पर्सन पार्टिसिपेंट्स में, फेस टू फेस सर्वे में ये होता है, इसका थोड़ा सा बेटर ये होता है कि आप इसमें जो है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, आप अपनी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को एक साथ टारगेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेलीफोनिक में तो मुझे 1-to-1 ही मेरे साथ होता है, लेकिन फेस टू फेस से मैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक साथ टारगेट कर सकती हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है, क्योंकि सब मेरे सामने हैं, मैं उनको बोल के, उनको किसी भी तरह से उनको जो है ना, मैं उनसे डेटा निकलवा सकती हूँ, उनको प्रॉपर उस पर अग्री करवाना होता है, उनकी मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, किसी तरह से कोई अपनी बेस यूज कर सकते हैं, हम उनको अपील कर सकते हैं कि आप प्लीज हमारा फॉर्म फिल कर दें। तो दिस इज इसमें हाई रिस्पॉन्स रेट तो होता है, और इसमें आपकी क्वेश्चन की क्लैरिटी भी होती है। आप सामने खड़े होकर जब एक क्वेश्चन समझा रहे हो और उसका किस वे से आपने क्वेश्चन किया है, तो उससे एक रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। लेकिन यही बात है कि इसमें एक तो रिसोर्स इंटेंसिव है, दूसरा हायर इंटरव्यू बायसनेस इसमें आ सकती है। पेपर बेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू दैट इट इज बेसिकली 1-to-1 डेटा, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, पेपर एसेस लेना, खुद जाके बहुत सारी पॉपुलेशन से आप एक साथ डेटा, उनकी हिस्ट्री से या उनकी कंप्यूटर सिस्टम से कहीं से भी आप डेटा को एसेस कर रहे हो पर्टिकुलर टारगेट के लिए। तो दिस इज द third type of the survey, that is type on the basis of the type of administration, on the basis of administration method: online, telephonic, face to face, and paper based. So we have discussed who completes or records the data. कंप्लीट हमारे पास कौन करता है, रिकॉर्ड हमारे पास बेसिकली पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें हमारे डेटा को कंप्लीट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर और मेल क्वेश्चनेयर। आप
किसी भी टाइप का क्वेश्चन उनको बना के दे सकते हो। आपने गूगल फॉर्म जनरेट कर दिया या आपने उनको ईमेल कर दिया प्रॉपर क्वेश्चन बना के, तो पार्टिसिपेंट्स उसको कंप्लीट करते हैं। और बाकी दूसरे जो हमारे पास अनदर टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास मोस्टली हमारा रिसर्चर या इंटरव्यूअर जो है वो डेटा को कंप्लीट करता है, रिकॉर्ड करता है। वन टू वन इंटरव्यू जो है ना, वन टू वन इंडिविजुअल इंटरव्यू कर रहे हो, टू अ ग्रुप फोकस्ड इंटरव्यू हो रहा है इसमें, या ओवर टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो इसमें हमारा जो बेसिकली रिकॉर्डर है, रिसर्च को डेटा को लेने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, वो हमारे पास कौन है, रिसर्चर है। और पार्टिसिपेंट्स हमारे डेटा को कंप्लीट करते हैं व्हेन वी आर गिविंग ईमेल क्वेश्चनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे रिसर्चर्स, हमारे पास बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्वे बेस्ड रिसर्च। नंबर वन इज द सैम्पलिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन। हमें जो सैम्पलिंग लेनी है, इसमें हमें क्या करना है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट लेना है फ्रॉम द लार्ज ग्रुप। आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते। आप सॉरी, ओपन एंड कहाँ गया? ओपन एंडेड में हमारे पास रिस्पोंडेंट्स को हम लोग उनका कहाँ, questions that allow respondents to answer their in their own words, like for example आप उनमें अगर आपने उनमें ऑप्शन पूछा है क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूछा है एंड देन व्हाई, then give me your comments regarding the particular evidence what you feel। तो आप इस तरह से अलाउ करते हैं रिस्पोंडेंट्स को कि वो अपने वर्ड्स में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। तो दिस इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव डेटा। और एंड आप इसमें इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट इट सपोर्ट्स द क्वालिटेटिव डेटा, एंड दीज ऑल द मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही हमें मिलता है। ठीक है, क्लोज एंडेड में तो यस और नो के दीज आर द इंडिविजुअल्स जिन जो इस तरफ यस की कैटेगरी में, दीज आर द इंडिविजुअल्स जो नो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आप इसको प्रॉपरली कर लेंगे, लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है वो मोस्टली कम विद द फ्रॉम द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द दीज आर द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन जो कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन में होते हैं। इसमें हमारे पास पर्सनल है, एटीट्यूडनल है, बिहेवियर है, सेंसिटिव क्वेश्चंस है, क्लोज एंडेड है ना, ओपन एंडेड है। अच्छा, क्वेश्चंस के वक्त देयर आर सम प्रॉब्लम। जब आप एक क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है बार बार। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले आपके पास कुछ देयर प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होते, अनक्लियर क्वेश्चन है। आप पूछना क्या चाह रहे हो आपको खुद भी नहीं पता है, या मुझे वो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। आपने अपनी तरफ से बहुत क्लियर क्वेश्चन बनाया है, बट वो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। डबल बैरल क्वेश्चन, डबल बैरल क्वेश्चंस में बेसिकली आप एक ही क्वेश्चन को जो है ना दो मतलब जो है वो कर रहे हो। क्वेश्चन कुछ है लेकिन उसको आंसर किस तरह से करना है ये शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट आपने लास्ट में जो ऑप्शन दिए हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है।
आपके एक सॉरी, डबल बैरल में बेसिकली हम दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं कि आपकी हेल्थ और स्मोकिंग दोनों मैंने एक साथ पूछ लिए। तो अब हमारा रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसके बारे में जवाब देना है, ये जो ऑप्शंस हैं ये स्मोकिंग से रिलेटेड हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द about physical health or about the income, so these are the two double barrel questions in a same question। वर्डी क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत लेंथी लिखा हुआ है, 4 लाइन का पूरा पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आपके क्वेश्चन में कभी भी वर्डी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, अनक्लियर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है वर्डी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन आप पहले ही अपना ओपिनियन दे रहे हो उनको, आप पहले ही आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, तो आपने ओपिनियन नहीं देना, आपने ओपिनियन लेना है, तो आपने उसमें नेगेटिव्स नहीं देने। मोस्टली क्वेश्चनर्स में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते, ठीक है। जार्गन इन क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि एक लेमैन को या एक नॉर्मल इंग्लिश जिसको समझ में आ रही है उसको आपके क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स आ रही हो, तो वो कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन में और आपका आंसर प्रॉपर ना कर पाए। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यही वाली बात है कि आपको जो है ना आपके आपके ऑप्शंस करेक्ट इनकरेक्ट है, आपके ऑप्शंस का सही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है बट लास्ट में जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं वो आपने क्लोज एंडेड के दे दिए, यस और नो कर दिया। पूरा राइट राइट योर कमेंट for this questionnaire ki what you feel about the COVID-19, when कितने लेवल की आपकी अवेयरनेस है या आपकी क्या आप क्या फील करते हो, आप लिख के बताओ। आपने उसके बाद आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने कमेंट में दे दिया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो दिस इज द ओवरलैपिंग इन द क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अनबैलेंस्ड रिस्पॉन्स ऑप्शन नहीं होने चाहिए, मतलब ज्यादा पॉजिटिव कर दिए या ज्यादा नेगेटिव कर दिए, तो इसकी वजह से बायसनेस आती है, आप खुद ही बायसनेस कर रहे हो इसकी वजह से। मिसमैच बिटवीन द क्वेश्चंस, रिस्पोंडेंट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ में नहीं आ रहा उसको प्रॉपर, ब्रांचिंग प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन जब उसको खोला एक और क्वेश्चन, तो दीज आर द सम ब्रांचिंग प्रॉब्लम्स। ब्रांचिंग क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे नीड होती है, तो वो भी क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें कंसिडर करना होता है कि हम कितना उसको कॉम्प्लिकेट करें, कितना कॉम्प्लेक्स करें। तो फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका पेपर वाला हो या आपका क्वेश्चनर हो, गूगल फॉर्म हो, आपका कोई भी फॉर्म कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू में भी आप कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। अगर आप 1-to-1 इंटरव्यू भी कर रहे हो ना तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए हम क्या करना होता है, इसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क यू कैन परफॉर्म, दैट इज पायलट टेस्ट। आई डोंट नो आप लोगों ने पायलट टेस्ट के बारे में सुना होगा कि नहीं होगा, बट पायलट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पायलट टेस्ट में आप क्या करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चनर बनाते हैं तो पहले आप उसको स्मॉल पॉपुलेशन पे टेस्ट करके देखते हैं। यू नीड टू टेस्ट द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आपने पूरी पॉपुलेशन को एक साथ नहीं लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 25 का या 10 का या 15 का डेटा ले रही हूँ, मैं अपने उस इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्टर करी हूँ टू ए वेरी स्मॉल बट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ठीक है। और ये वाले जो है उनसे प्रॉपर फिर पहले उनसे मैंने पायलट स्टडी का मतलब होता है अपने ही क्वेश्चनर पे पायलट टेस्ट कर रहे हो, आप अपने एक स्मॉल बैच टेस्ट कर रहे हो। आपने कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन ली पूरे सैंपल में से, जैसे 10 पीपल्स को ले लिया आपने, उसको इनको इंस्ट्रूमेंट उन पर एडमिनिस्टर कराया। अब बाद में उनका फीडबैक लेंगे रिटन में कि उनको क्या डिफिकल्टीज फेस आई या वो क्या फीडबैक देना चाह रहे हैं ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अब हम रिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियंस, ठीक है। लास्ट में आप जो लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप उन पार्टिसिपेंट्स को फाइनल सैंपल से एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो आपने पार्टिसिपेंट लिए जो आपको पायलट टेस्ट में हेल्प करें, दिस विल बी योर पार्टिसिपेंट्स, बट आप उनको अपने रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो काम था, इन्होंने आपको सिर्फ इसलिए आपने इन पे ये टेस्ट किया ताकि आपके क्वेश्चन एयर को जो है ना, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि पायलट टेस्ट हम सिंपली स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे एक स्मॉल बैच पे हम ये टेस्ट करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद जो वो फीडबैक हमें देते हैं उसके अकॉर्डिंग रिविजन करते हैं कि अगर हम उसकी प्रॉपर वैलिडेशन करते हैं, उसके बाद उन पार्टिसिपेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उन फाइनल सैंपल में उनको इंक्लूड नहीं करते। Acha, these are the some strategies that you must use when you want to improve your response rate. I have told you earlier that we have to make higher response rates. हमें इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि हमारे रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो ताकि हमारे रिजल्ट एक्यूरेट हो सके।
ऑलराइट। सो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू प्री नोटिफाई पार्टिसिपेंट्स। आपने सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को पहले ही बताना है कि आई एम बिफोर स्टार्टिंग योर सर्वे यू हैव टू प्रिपेयर योर पार्टिसिपेंट्स। आपने उनको पहले, अगर आप ऑनलाइन करें तो यू हैव टू सेंड नोटिफिकेशन, और अगर आप जो है इंटरव्यू बेस्ड कर रहे हो या आप जो है दूसरे मेथड यूज कर रहे हो तो आपको उनको कॉल पे या आपको किसी भी तरह से अपने पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करना है, प्री नोटिफिकेशन देने। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो पहले से नोटिफाई होता है ना आपको, तो सर्वे के लिए भी आपको पहले प्री नोटिफिकेशन आना चाहिए। आपको डायरेक्टली सर्वे फॉर्म उनके मुंह पे नहीं मारना चाहिए, डायरेक्टली आपको उनको उससे नहीं देना चाहिए फॉर्म। दूसरा आपको क्या करना है, फॉलो अप प्रोसीजर्स। आपने सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजना है, रिमाइंडर्स देने के आप कि हैवंट यू रिस्पॉन्ड टू माय जो है सर्वे। आप उनको बार बार इंकरेज करेंगे फॉर द कंप्लीशन। ठीक है, आप उसको ये भी कर सकते हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्राइवेसी रखी है, आपको नहीं पता चल रहा कि कितनी टारगेट ऑडियंस ने फिल कर दिया है, तो आपने ये भी, आप उसमें ये भी कर सकते हो कि इग्नोर माय मैसेज इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फॉर्म। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपने जो है ना ऐसा टॉपिक लेना है जो कि एंगेजिंग हो। इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो बहुत डीप होना चाहिए, आप उसको जितना शॉर्ट रखते हो उतना अच्छा होगा। अगर मैं एक फॉर्म फिल कर रही हूँ जो कि 4 to 5 पेजेस का है, तो मैं 2 to 3 पेज पे आके मैं फॉर्म को छोड़ दूंगी। ये एंगेजिंग नहीं होता, रिस्पॉन्डेंट जो है वो इट इट इज नॉट पॉसिबल कि जो है ना मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स जो है उसको पूरा फिल करें। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट्स फटीग हो जाते हैं और उनका जो है ना डेटा प्रॉपर गैदर नहीं कर सकते, और ये इम्पोर्टेंट हम नहीं कंसिडर करते, बट वी कैन कंसिडर इंसेंटिव्स टू। ऑफर इंसेंटिव सच एज गिफ्ट कार्ड्स, प्राइजेस, एंट्री। अगर आपका डेटा बहुत अच्छा है, आप बहुत यूजफुल है और आपको पार्टिसिपेशन हाईली नीडेड है उस पर्टिकुलर ऑडियंस से, तो आप उनके लिए कोई इंसेंटिव भी उनको इंकरेज करने के लिए कर सकते हैं। ये कोई अनइथिकल रिकमेंडेशन नहीं है, यू कैन कंसिडर द इंसेंटिव कैटेगरी टू। Okay, three-phase administration है. I have told you that you have to pre-notify the participants. So before pre-notification, how you will pre-notify? सबसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब प्री नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले आप अपना अपना सर्वे इनिशियल फेज में यू विल मेल और डिस्ट्रीब्यूट योर सर्वे टू द पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद आपने 2 वीक्स तक वेट करना है। यू हैव टू वेट 2 वीक्स बिफोर द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज द सेकंड मेल सेंड अनदर राउंड ऑफ सर्विस टू नॉन पार्टिसिपेंट्स। जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, आप उनको दोबारा से दे विल बी अनदर राउंड। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाद में पोस्ट कार्ड मेलिंग से या सॉफ्ट रिमाइंडर्स आपने भेजना शुरू कर देना। लाइक दीज आर थ्री फेस। हम क्या करते हैं, एक ही बार में हमने भेज दिया, ऑल राइट, हम बार बार एक ही फॉर्म बार बार डेली हम नहीं भेज सकते, बट यू हैव टू वेट फॉर 2 वीक्स। सबसे पहले आपने प्री नोटिफिकेशन दी, दिस इज द प्रॉपर क्राइटेरिया यू हैव टू फॉलो फॉर द सर्च। तो जब हम राइट अप करते हैं, आपने अभी रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल आपने आई होप आपने लर्न कर लिया होगा, तो उसमें ये सब बातें नोट करनी होती है। सब में उसमें बात में आपकी मेथोडोलॉजी में लिखा होता है कि आपने किस तरह से सर्वे को, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है इन योर स्टडी, इन योर डेटा। एक हाईली इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर्स में डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स इन चीज़ों को बहुत कंसिडर करती हैं। अगर आप कभी सर्वे बेस्ड स्टडी जो है जिसमें सर्वे बेस्ड रिसर्च कंडक्ट की हो, अगर आप उन पेपर्स को रीड करेंगे तो मेथोडोलॉजी में प्रॉपर ये बात को लिखा हुआ आता है कि हाउ यू हैव कंडक्टेड, हाउ यू हैव एडमिनिस्टर्ड योर क्वेश्चनर टू द ऑडियंस, टू द पार्टिसिपेंट। पहले आप बताएंगे आपने पहले ईमेल किया, फिर आपने 2 वीक्स के बाद दोबारा से सेकंड ईमेल किया, एंड देन उसके बाद आपने सॉफ्ट रिमाइंडर्स दिए। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंसीडर ड्यूरिंग यूर रिसर्च, ताकि आप जो है बाद में अपने आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग योर राइटिंग, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इन योर रिसर्च। और इसके अलावा आपने जब आप कोई दूसरी बात, जब आप अपने इंटरव्यूअर्स को, ये तो मैंने बात बता दी कि जब आप ऑनलाइन सर्वे एडमिनिस्टर कर रहे हो, दीज आर द मेथड। जब आप ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू के लिए क्या कंसिडर करना है। जब आप इंटरव्यू प्लान करेंगे तो सबसे पहले आपने जो इंटरव्यू लेना ना, दैट मस्ट मेंटेन अ न्यूट्रल एटीट्यूड थ्रू आउट द सर्वे टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टिसिपेंट। आपका इंटरव्यूअर डायरेक्टली उस कॉन्टेक्ट में आ रहा है टू द पार्टिसिपेंट, तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेन करना है कि उसका कोई भी ऐसा बिहेवियर ना हो कि जो कि रिस्पोंडेंट्स के आंसर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। लाइक अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं फर्क पड़ता, ऐसे सोचें। उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, इससे बायसनेस आती है। ट्रेनिंग इंटरव्यूज, आपको जब इंटरव्यूअर्स को भेजना होता है बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, you have to train to ensure he is understanding the questions, he understood the procedure,
and methods for collecting the data reliably. And you can use, he must use notes or recorders. एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो टेलीफोन्स पे जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसके लिए तो प्रॉपर जो है ना उसको टेलीफोन इंटरव्यू गाइड एक पहले ही प्री प्लान होनी चाहिए, जिस तरह से आप यहाँ पे प्री नोटिफाई करें ना ऑडियंस को इन द ईमेल्स के थ्रू कि हमारा आ रहा है। इसी तरह से टेलीफोनिक इंटरव्यू गाइड भी प्रोवाइड करनी चाहिए टू द गाइड एंड एज वेल एज टू द पार्टिसिपेंट्स, ताकि वो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को उसको आंसर कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड कर सके। So, in last, I am concluding my presentation, today's presentation, by telling you the potential ethical issues in survey research. What are the potential ethical guidelines that you have to consider? Uh, like I told you that instrument destruction is one of the most common parameter, one of the most common potential guidelines that you have to consider. That is the discard. You have to discard, you have to destroy your questionnaire after conducting your research. सबसे पहले आपने ओवरस्टेटिंग बेनिफिट, आपने बहुत ज्यादा, आपको जो है ना अपनी रिसर्च को ऑनेस्ट रखने के मेन आपका पर्पस है, आप रिसर्च कर रहे हो तो द रिसर्च इज द ट्रू वैल्यू। आप उसको किसी भी तरह से ओवरस्टेट नहीं कर सकते, आप उसको रिसर्च को चेंज नहीं कर सकते, ओवरस्टेटिंग नहीं कर सकते। काफी सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जो हाईली इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स हैं, वो डेटा भी मांगते हैं, वो क्वेश्चनर्स या रिकॉर्ड्स आपके जो है पूरे डेटा आप उनको रिक्वायर्ड होता है, तो आप उसको ओवरस्टेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेफ्टी कंसिडरेशन लाइक आपको अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज करें, फेस टू फेस इंटरव्यूज करें, तो ऑब्वियसली आपको इस तरह के एनवायरनमेंट में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए जो कि अनसेफ। कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरामीटर। एक तो आपको किसी भी पार्टिसिपेंट का डेटा आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। if I'm sharing a number with you, I'm sharing an email address during my you are taking my biography, आप मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ड्यूरिंग स्टार्ट में, जब आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप मेरा डेटा ले रहे हो, तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, और आप डेटा डिस्क्लोजर, जहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन जिसमें आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, इस टाइप के सर्विस में जहाँ पे आइडेंटिटी रिवील कर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अपनी ही फैकल्टी के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आपका डेटा डिस्क्लोजर एक प्रॉपर एक फॉर्म होता है जिसको आप फिल करना होता है, और आप उसको डेटा को, पार्टिसिपेंट्स के डेटा को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज द इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रक्शन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। So we will discuss tomorrow regarding the questionnaire construction, how we can practice the questionnaire construction, I hope। और उसके अलावा हम कल ये भी देखेंगे कि हम क्वेश्चनर बनाते कैसे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी वैलिडेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। वी हैव नॉट डिस्कस वैलिडेशन येट। पायलट स्टडी इज वन ऑफ द केस, पायलट स्टडी हम कर सकते हैं, बट हम प्रॉपर उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, और उसके बाद हम उसको सर्कुलेट करेंगे, और रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है ऑनलाइन जो आप डेटा ले रहे हो, या कोई आप इंटरव्यू के थ्रू डेटा ले रहे हो, तो हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कल तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Okay, this is all from my side. Any question you have? Okay, thank you so much, Ms. Sabha, for such an insightful session. If anyone has any question or query, he or she can ask here, or otherwise, you can also text in the WhatsApp group. You can also contact me. I can share. I can answer individually, so the text too. Sure, students, you can send your questions to our management. Then we will share with Ms. Sabha and you will be answered. So currently there is no question. So madam, we should end this.